फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ। लेट अस सी व्हाट इज़ रॉल्ड्स लॉ। बच्चों देखिए, हमारे पास सपोज़ एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। सपोज़ वो दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, और ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो वोलेटाइल हैं। What is the meaning of volatile? Volatile means that component A and B, they can change into vapors. They can be vaporized. Then A and B are called volatile. And binary means a solution which is made by adding the two components. Now there is another term you need to know. That term is the meaning of the पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, अगर हम किसी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, से आई से द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड आई डिनोटेड बाय ए, तो दिस मीन्स दिस रेफर्स टू द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन द वेपर प्रेशर that is contributed by the B. If I write the partial pressure of B, that means the individual contribution by the component B. So this is the meaning of the partial pressure. It is the contribution in the vapor pressure exerted by the component B, and this PA refers to the contribution in the vapor pressure by the component A. So let us see what is the statement of the Raoult's law. According to Raoult's law, the partial vapor pressure, according to Raoult's law, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component of a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. So we have two components. Suppose the partial pressure contributed by A is PA. So as per Raoult's law, this is directly proportional to the mole fraction of A. This implies if we put some proportionality constant, this is PA is equal to P naught A into XA, and partial pressure of the component B will be directly proportional to the mole fraction of the component B. This means if we remove the proportionality constant, then PB is equal to PB naught into XA. तो यहाँ पर बच्चों हमने ये जो P नॉट A लगाया है या P नॉट B लगाया है, ये क्या है? These are the vapor pressures of pure components. These are the vapor pressure of components in pure form, right? So ये हमारे proportionality constant है. This is the vapor pressure which is contributed by the component A. This is your vapor pressure which is contributed by the component B. Now the total pressure will be the sum total of the pressure which is contributed by the component A and component B. Now since both are volatile, so both are contributing to the vapor pressure. So total pressure will be the sum total of contribution by component A plus the contribution of vapor pressure by the component B. Now we can insert the values of 1 and 2 here. This will be P naught A into XA plus P naught B into XB. Now अब बच्चे, अब आपको मालूम है कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक का मोल फ्रैक्शन XA है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन XB है, देन दिस इज़ इक्वल टू 1. हम ये भी लिख सकते हैं कि XA इज़ इक्वल टू 1 माइनस XB. अब यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर ये जो XA है इसको XB की टर्म्स में लिख रही हूँ. आई विल राइट 1 माइनस
एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लेट्स ओपन इट अप। ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सो दिस विल बी पी नॉट ए। अब यहाँ पर बच्चे हम यहाँ ज़रा से इधर कॉमन ले लेंगे। ये हमारा हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। This indicates this equation that total pressure is equal to this. This indicates कि हम जो टोटल प्रेशर है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का, this can be represented in terms of either of the components। ठीक है, ये हमने एक्स बी की टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर। अब यही जो हमारा जो ये इक्वेशन थी, जो टोटल प्रेशर की थर्ड इक्वेशन थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चे। देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो एक्स बी जो है दैट इज़ 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अब हमारा ये जो पी टी है दैट विल बी इक्वल टू, मैं इक्वेशन थर्ड में प्लेस कर रही हूँ बेटे, पी नॉट पी नॉट ए यहाँ पर इंटू एक्स ए हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब अगर हम इसको भी आगे फर्दर इसको चेंज करें तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा हम अरेंज करेंगे। पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो जो ये हमने टोटल प्रेशर निकाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम टोटल प्रेशर को एक्स ए फर्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी इंडिकेट कर सकते हैं, और सेकंड कंपोनेंट की यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसकी टर्म्स में भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो ये दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों ही जो हैं ये वोलेटाइल हैं और वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द सम टोटल ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट इज़ डन बाय द ए एंड सम टोटल ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट इज़ डन बाय द बी। अभी यहाँ हमने बात करी कि दोनों कंपोनेंट्स जो है ना बच्चे, वो आपके वोलेटाइल हैं। सपोज़ आपके पास ऐसा है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया, जो कंपोनेंट ए है, ये मैं आपको बच्चे यहाँ बताने जा रही हूँ सेकंड केस ऑफ रॉल्स लॉ। सेकंड केस ऑफ रॉल्स लॉ में क्या हो रहा है कि ये जो कंपोनेंट है, सपोज़ ये वोलेटाइल है और बी जो है बच्चे ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, अब जो नॉन वोलेटाइल है तो ये तो क्या है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है ये वेपर प्रेशर में जो है नहीं करेगा, बिकॉज ये वोलेटाइल है नहीं। तो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन जो है कहाँ से आएगी, ए से आएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पी टी था टोटल प्रेशर, क्योंकि कंपोनेंट बी तो प्रेशर दिखा ही नहीं रहा, तो टोटल जो हमारी कंट्रीब्यूशन आएगी दैट विल बी पी नॉट बी, आई एम सॉरी, लेट मी रब दिस, क्योंकि आपका जो बी है ये नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पर बच्चे देखिए, जो आपका कंपोनेंट बी था ये नॉन वोलेटाइल था, तो जहाँ टोटल प्रेशर है वो सिर्फ कंपोनेंट ए की वजह से ही आएगा। पी ए का प्रेशर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए,
तो जो टोटल प्रेशर PT है दैट विल बी इक्वल टू P0A इंटू XA, यानी आपका सिर्फ सॉल्वेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है किस चीज़ में, वेपर प्रेशर को बनाने में। सो बच्चे लेट अस सी कि हमारे जो रियल लाइफ होती हैं सिचुएशंस, जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनमें कहाँ ये राउल्ट्स लॉ काम आता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास सिंपली आपकी मम्मी कुछ बना रही हैं, जैसे इसमें कोई वेसल है, इसमें अगर वाटर है, यू ऑल नो कि दिस बॉयल्स एट द 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू द वेपर्स, राइट, इट स्टार्ट्स चेंजिंग टू वेपर्स। लेकिन अगर आप इसमें कुछ क्वांटिटी किसी इनवॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे सोडियम क्लोराइड की डाल दें, ये सोडियम क्लोराइड जो है बच्चे ये इनवॉलेटाइल है, दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर, तो आपका कंपोनेंट B ये है, ये आपका कंपोनेंट A है, तो क्या होगा, जो टोटल प्रेशर है दैट विल ओनली बी ड्यू टू दिस कंपोनेंट A. So this is how this Raoult's law works in our daily life. I hope you have understood this. Let us understand its graphical representation. देखिए बच्चे, यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि सपोज़ जब हम ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मैं इसको दोबारा से बच्चे यहाँ पर बनाती हूँ, एक बार एक्सिस पर ध्यान से देखिए। सपोज़ कि मैं इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर बच्चे मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस एक्सिस पर यहाँ, और इस एक्सिस पर जो है मैं पार्शियल प्रेशर आपको डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर जो पहले है हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट A है, तो उसका मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू 1 है। इस समय हमारे पास कंपोनेंट B हमने इसमें ऐड नहीं करा। इसका क्या मतलब है कि अभी जो है यहाँ पर इस स्टेज पर हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, देखिए मोल फ्रैक्शन XB का तो जो है 0 है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है दैट इज़ P0A, माने वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अब यहाँ जैसे मोल फ्रैक्शन आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो इधर जाते जाते XA जो है बच्चे ये 0 हो गया और XB जो है वो 1 हो गया, यानी आप B कंपोनेंट जो है आप ऐड कर रहे हो और इसका मोल फ्रैक्शन जो है कम्प्लीटली 1 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा ये एक लाइन दिखेगी, जो ये वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट B का होगा। अब यहाँ पर XB कंपोनेंट की वैल्यू 1 है, तो जो यहाँ तक ये वेपर प्रेशर हमारे पास आया है, दिस इज़ द वेपर प्रेशर विच इज़ exerted by the component B in the pure form। अब जैसे मैं इधर को जा रही हूँ तो XB का मोल फ्रैक्शन देखिए बेटे, अगर मैं इधर को जाऊँ XB का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है लेकिन XA का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो हम प्रेशर की लाइन दिखाएंगे, इधर जो ये लाइन मैंने आपको यहाँ शो करी है, दिस इज़ द प्रेशर विच इज़ exerted by the component A। I hope you have understood कि यहाँ पहले प्योर कंपोनेंट A था, B कंपोनेंट अभी हमने मिक्स नहीं करा था, तो जो हमारा यहाँ ये जो प्रेशर आया ये प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर प्योर कंपोनेंट B की वैल्यू 1 है, तो XA इसका मतलब यहाँ 0 है, तो ये जो प्रेशर है ये प्योर कंपोनेंट हमारा B का प्रेशर है। एंड इफ़ यू ज्वाइन दीज 2 लाइन्स, यहाँ पर जो है अगर हम ये 2 लाइन्स ज्वाइन कर दें, दिस इंडिकेट्स योर टोटल प्रेशर PT विच इज़ द सम ऑफ PA प्लस PB। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राउल्ट्स लॉ। बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज़ राइट in the comment section,
Also write in the comment from which school you are watching this, in which school you are studying in the class 12. I will be glad to know that. And if you have any doubts, please put your doubts in the comment section. And keep watching Chemistry Made Easy with Meena ma'am. Thank you so much for watching.